அலர்மேல் மங்கா நாயிகா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மணே நமக. மாதர் நமாமி கமலே கமலாய தாக்ஷி ஸ்ரீ விஷ்ணு ஹிருத்கமல வாசினி விஸ்வமாதக க்ஷீரோதஜே கமல கோமல கர்ப்பகௌரி லக்ஷ்மி பிரசீத சததம் நமதாம் சரண்யே. ஸ்ரீமன் நாராயணனின் இதய கமலத்தில் எப்போதும் அகலாது வீற்றிருப்பவளும் பார்க்கடலிலிருந்து செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருந்தபடி அவதாரமானவளும் மாதர் குலத்துக்கே தலைவியாக விளங்குபவளான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் திருவடிகளை நாம் எப்போதும் சரணமடைய வேண்டும் என்று பக்தர்களாகிய நமக்கு விளக்குகிறது இந்த ஸ்லோகம். பக்தர்களே, இதையே கருத்தில் கொண்டு தனது திருவாய்மொழி பாசுரத்தில் நம்மாழ்வாரும் அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா என்று எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் தாயார் அகலாது வீற்றிருப்பதை கூறுகிறார். அது மட்டுமல்ல, புகழொன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு எம்பெருமானிடம் அடைக்கலமாகிறார். அதே போல திருக்கோவலூர் எம்பெருமானின் திவ்ய தரிசனத்தை கண்ட பேயாழ்வாரும் முதல் வரியிலேயே திருக்கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன் என்று குறிப்பிட்டது அந்த எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் நீங்காமல் அமர்ந்திருக்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரைத்தானே. அந்த தாயாரின் அம்சமே இதோ இந்த திருச்சானூரில் கொலுவிருக்கும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவத்தை தரிசித்து தாயாரின் எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி என்றாலே கடாட்சித்தல் என்று பொருள். கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானின் திருக்கண்களில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி தயாதேவியாக புகுந்தாளாம். இதை உருவகித்தே தயாசதகம் என்கிற தெய்வீக நூலை எழுதியுள்ளார் சுவாமி தேசிகன். வேதங்கள் போற்றும் வேத வல்லியான அந்த திருமேனி சௌந்தரியத்தையும் சௌபாகியத்தை அள்ளி வழங்கும் திருக்கல்யாண குணத்தையும் என்னவென்று சொல்வது? அந்த தாயாரின் திருவடிகளை பற்றினோமானால் நம்மை அக்கறையுடன் சம்சார கடலின் அக்கறையில் கொண்டு சேர்ப்பாள் தாயார். பாகவதோத்தமர்களின் இதே கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் விஷ்ணு பிரியரான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு இந்த திருச்சானூரில் எல்லா நாட்களுமே திருநாட்கள்தான். ஆனாலும் மாதத்தில் ஸ்ரீ பஞ்சக தினங்கள் என்று போற்றப்படும் அமாவாசை, பௌர்ணமி, பஞ்சமி, பூரம், உத்திரம் இந்த தினங்களில் வெண்தாமரை மலர்களால் தாயாரை அர்ச்சிப்பது மிகவும் விசேஷமான ஒன்று. பக்தர்களே, அந்த தாயாரின் பத்ம கமலங்களை நாம் பக்தியுடன் பற்ற வேண்டும். லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்று சொல்வதை கேட்டிருக்கிறோம். தாயாரின் திருக்கண்களின் பார்வை எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வம் கொழிக்குமாம், மங்களங்கள் பெருகுமாம்.
अब्दः मासाः अयावाः उषाः अरुणी सूर्याः अक्षिणाः संवत्सरः ताः एव प्रीणाति अधोगति चक्षुः एव अग्नेः पुरस्तात् दधाति आनन्दः भवति यः एव वेद आवह वै इदम् अग्नेः शरीरम् आसीत् सः प्रजापतिः पुष्करवर्णे इति पुष्करवर्णे वातः भूतः अनेन गते सः प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां न अविन्दता सः एतत् अपां कुलायम् अवश्यते तस्मिन् अग्निम् अचिनुता दते इयम् अभवते ततः वै सः प्रतीति अधिक्षते पुरस्ताहादे उपादधादित्युपादधाते तते शिरः भवते सा प्रातिदिगेयाम् दक्षिणतः उपादधादित्युपादधात् सः दक्षिणः पक्षः भवते सा प्रतीतिदिगेयाम् उत्तरतगित्युत्तरतः उपादधादित्युपादधात् सः उत्तर इत्युत्तरः पक्षः भवते सा उदीचीदिगेयाम् उपरिष्टात् उपादधादित्युपादधात् पृष्ठम् अभवते सा ऊर्ध्वादिगेयाम् वै अग्निः पञ्च इष्टकः तस्मात् यत् अस्याम् खनन्ति अभीति इष्टकाम् कृन्दन्ति अभीति शर्कराम् सर्वाः वै वयम् वयोः दशे दीप्यते तस्मात् इमाम् वजागम्भीरनक्रम् न अधीति आसते यः एवं विद्वान् अग्निम् शिशते प्रतीति एव तिष्ठति अभीति सः जगति आग्नेयः वै ब्राह्मणः तस्मात् ब्राह्मणाय सर्वासु दिक्षु अभ्युगम् ताम् एवादते दिशम् अन्वितीयेति अपापै अग्निः कुलायम् अग्निर्महारुकाः त्वाम् एवादते योनिम् प्रेति विशन्ति संवत्सरमिति संवत्सरम् भृत्वा द्वितीये संवत्सर इति संवत्सरे आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निरदेव वेदे ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् बृहस्पत्याम् सरम् वैष्णवम् त्रिकपालमिति त्रिकपालम् द्वितीये संवत्सर इति संवत्सरे अभिजितेत्यभिजितायते तायते अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः भवति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षराः आज्ञेयम् गायत्रम् प्रातःसवनमिति प्रातः सवनम् प्रातःसवनमिति प्रातः सवनम् एव तेन दाधारा गायत्रीम् छन्दहायते एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवति एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षराः तिष्ठते ऐन्द्रम् त्रैष्टुभम् माध्यन्दिनम् सवनम् माध्यन्दिनम् एव सवनम् तेन दाधारा तिष्टुभम् छन्दहायते द्वादशकपालकिति द्वादशकपालः भवति द्वादशाक्षरे द्वादशाक्षराः जगति वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् जागरम् तृतीयसवनमिति तृतीयसवनम् तृतीयसवनमिति तृतीयसवनम् एव तेन दाधारा जगतीम् छन्दहायते बृहस्पत्यः चरुः भवति ब्रह्मा वै देवानाम् बृहस्पतिः ब्रह्मा एव तेन दाधारायते वैष्णवः त्रिकपालैः त्रिकपालः भवति यज्ञः वै विष्णुः यज्ञम् एव तेन दाधारायते तृतीये संवत्सर इति संवत्सरे अभिजितेत्यभिजिता यजते अभिजित्या इत्यभिजिते संवत्सरमिति संवत्सरम् मुख्यम् बिभर्ति इमम् एव तेन लोकम् शृणोति यते द्वितीये संवत्सर इति वत्सरे अग्निम् चिनुते अन्तरिक्षम् एव तेन शृणोति यते तृतीये संवत्सर इति संवत्सरे यजते अमम् एव तेन लोकम् शृणोति वै परः आत्मारः कक्षीवानिति कक्षीवाने औषिजः वीतहव्य इति वीतहव्यः सायतः त्रिशतस्युः
पौरुगोच्यैति पौरुगोच्यः प्रजाकामान्ति प्रजाकामाः अचिन्मता तथा वै ते सहस्रकं सहस्रमिति सहस्रं सहस्रं पुत्रान् अविन्दन्ता प्रदते प्रजयेति प्राजया पशुभिरिति पशुभिः तां मात्राम् आप्नोतीयां ते अगच्छन् या एवं विद्वान् एताम् अग्निं चिनुते प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् अचिनुता सः क्षरपभिरिति क्षरापभिः भूत्वा अधिष्ठते तं देवाः बिभ्यतः नामुपेति आयन्नेते छन्दोभिरिति छन्दःभिः आत्मानं साधयित्वा उपेति आयन्ने तत् छन्दसां छन्दस्त्वमिति छन्दः त्वं ब्रह्मा वै छन्दागुंसि ब्रह्मणः एतत् रूपम् इति कृष्णाजिनमिति कृष्ण अजिनं कास्मि इति उपानः उपेति मुञ्चते छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव आत्मानं साधयित्वा अग्निम् उपेति चरति आत्मनः हिंसादि देवनिधिरिति देवानिधिः वै एषः नीतिधीयते यते अग्निः अग्ने वाह वै निधिमिति निधिम् अगुप्तम् विन्दन्ति न वाह प्रदीपेति जानाति उखाम् एति क्रामति आत्मानम् एव अधिपामित्यधीपाम् पुरुतेः गुप्त्यैः अधोचति खलु आक्रम्येत्याक्रम्या इति नैरृति नैरृति उखायत आक्रामेदित्याक्रामेते निरृत्यादिति निरृत्यैः आत्मानम् दध्यात् तस्मात् न आक्रम्येत्याक्रम्याः पुरुषतीर्थमिति पुरुषाजीर्णम् उपेति दधाति गुप्त्यैः अधो यदि यथा ब्रूयात् एतत् मेः गोपाजा इति तादृश एव तत् प्रजापतिः वै अथर्वा अग्निः एव दध्यन् अथर्वणः स्तानि एतां हवा तत् ऋषिः अभ्यनुवाचेत् अनुवाचा इन्द्रः अर्थभिरित्यर्थाभिः इति इतराभिः अग्निं चिनोति सात्मानमिति सा आत्मानं देवाग्निं चिनुते सात्मेति सा आत्मः अमुष्मिन्ने लोके भवति यः एवं वेद शरीरं वै एतत् अग्नेः यतेचित्यः आत्मा वैश्वानरः यतेचिते वैश्वानरं जुहोति शरीरम् एव अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति शरीरं वै एतत् यजमानः समिति कुरुते यत् अग्निं चिनुते यते वैश्वानरं जुहोति शरीरम् एव सज्जस्कृत्य आत्मना अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति तस्मात् तस्य नावेति जन्ति जीवन् एव देवान् अभीति एते वैश्वानर्या ऋजापुरीशम् उपेति ददाति यं वै अग्निः वैश्वानरः तस्य एषाचितिः यते पुरेशम् अग्निं एव वैश्वानरं चिनुते एषा वै अग्नेः प्रिया तनोः यते वैश्वानरः प्रियाम् एव अस्या तनुवम् अवेति रुन्धे वै दीक्षया देवाः विराजमिति वीराजोः आप्नुवन् स्वाहा रात्रिः दीक्षितः स्याते त्रिपदेति त्रिपदा विराजति वीराटे विराजमिति वीराजोः आप्नोति रात्रिः दीक्षितः स्याते षट् वै ऋतवा संवत्सरगिति संवत्सरः संवत्सरगिति संवत्सरः विराजति वीराट् विराजमिति वीराजोः आप्नोति दशा रात्रिः दीक्षितः दशाक्षराः विराजति वीराट् विराजमिति वीराजम् आप्नोति द्वादशा रात्रिः दीक्षितः स्याते द्वादशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरा संवत्सर इति संवत्सरः विराजति वीराट् विराजमिति वीराजम् आप्नोति त्रयोदशेति त्रयः दशा रात्रिः दीक्षितः स्याते त्रयोदशेति त्रयः दशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराजति वीराट् विराजमिति वीराजम्
आप्नोति पञ्चदशेति पञ्चदशा रात्रे दीक्षितः स्याते पञ्चदशेति पञ्चदशा वै अर्धमासस्येत्यर्थमासस्य रात्रयः अर्धमासगित्यर्थमासाः संवत्सर इति संवत्सरः आप्यतेः संवत्सर इति संवत्सरः विराजति विराटे विराजमिति विराजम् आप्नोति सप्तदशेति सप्तदशा रात्रे दीक्षिता स्याते द्वादशा मासाः पञ्चारतवः सः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराजति विराटे विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुर्विंशतिमिति चतुर्विंशतिम् रात्रे दीक्षितः स्याते चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः अर्धमासा इत्यर्थ मासाः संवत्सर अर्धमासा इत्यर्थमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराजति विराटे विराजमिति विराजम् आप्नोति त्रिकंशदम् रात्रे दीक्षितः स्याते त्रिकंशदक्षरे त्रिकंशदे अक्षराः विराजति विराजमिति विराजम् आप्नोति मासं दीक्षितः स्याते जः मासः सः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराजति विराटे विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुरः मासः दीक्षितः स्याते चतुरः वै एतां मासः वसवः अभिभरोते येति जगन्नेकागत्यें छन्दः अष्टौ रुद्राः ते अन्तरिक्षं येति अजयन्ने दृष्टभागो छन्दः द्वादशा आदित्याः ते दिवं एते अजयन् जगतीं छन्दः वैते व्यावृतपृथिवी आवतौ अगच्छन् श्रैष्ठ्यं देवानां तस्माः ते द्वादशा मासः भृत्वा अग्निं चिन्विता द्वादशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः चित्तः तस्याः अहोरात्राणि इत्याह रात्राणि इष्टकाः आप्तेष्टकमित्याप्ता इष्टकम् येन स्वगति व्यावृतपृथिवी आवृतं एव गच्छति श्रैष्ठ्यं प्रमाणानां स्वर्गाय सुभागाय वै एषः लोकाय क्रियते यद् अग्निः तां यतेन अन्वारोहेदित्यनु आरोहेत् स्वर्गादिति सुभागात् लोकात् यजमानः यदा पृथिवीं येति अक्रमिणं प्राणैति प्राणः महामाहासीत् अन्तरिक्षं येति अक्रमितं येति प्राजा महामाहासीतेति बहु येति अक्रमितं स्वाहागन्मा इति आहायेषः वै अग्नेः अन्वारोह इत्यनु आरोहः तेन एव येनम् अन्वारोहतीत्यनु आरोहति स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य समस्या अक्षीयते भक्षसंहितामिति भक्षसंहितामिति कर्तुमिति कर्तुमुपेति याते पापीयसी अस्या आत्मनः प्रजेति प्राजा स्याते वेदि संहितामिति वेदि संहितामिनोति ज्यायागुंसं देवा कर्तुमिति कर्तुमुपेति येतेन अस्या आत्मनः पापीयसी प्रजेति प्राजा भवति सहस्रं जिन्मेता प्रथमं जिन्वानः सहस्रसंहित इति सहस्रसंहितः वै अयं लोकः इमं एव लोकम् अभीति जगति द्विसाहस्रमिति जिन्मेता द्वितीयं जिन्वानः द्विसाहस्रमिति वै अन्तरिक्षम् एव अभीति जगति त्रिसाहस्रमिति जिन्मेता तृतीयं जिन्वानः त्रिसाहस्र इति त्रिसाहस्रः वै असौ लोकः अमुम् एव लोकम् अभीति जगति जानोदग्नमिति जानोदग्नं जिन्मेता प्रथमं जिन्वानः गायत्र्या एव इमं लोकम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति नाभिलग्नमिति नाभिलग्नं जिन्मेता द्वितीयं जिन्वानः दृष्टुभा एव अन्तरिक्षम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति ग्रीवदग्नमिति ग्रीवदग्नं जिन्मेता तृतीयं जिन्वानः जगत्या एव अमुं लोकम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति न अग्निं छित्त्वा रामाम् उपेति याते अयोनौ
रेतः धास्यामि इति न द्वितीयं चित्वा अन्यस्य द्वितीयम् उपेति यातेन तृतीयम् चित्वा काञ्चन उपेति यात् रेतः मयि एतदेनीति धत्तेः गते अग्निं शिनुते गते उपेयादित्युपायात् रेतसा ऋद्धेदाथो इति खलु आहुः अप्रजस्यमित्यप्राजस्यं तत् यत् न उपेयादित्युपायात् इति यत् रेतस्य चाविति रेतः दिजौः उपदधातीत्युपाधा इति ते इति एव यजमानस्य रेतः विरुलः तस्मात् उपेति याते रेतसः स्कन्धाय त्रीणि वारेतागंसि पिता पुत्रः पौत्रः यते द्वे इति रेतस्य चाविति रेतः दिजौः उपदध्यादित्युपादध्यात् रेतः स्याविति धिञ्जाते तिस्रः उपेति तथा रेतसः दत्या इति सन्दत्यै इयं वावा प्रथमा रेतस्य इति रेतः शिके भागे वैयं तस्मात् पश्यन्ति इमां पश्यन्ति वाचं वदन्तीम् अन्तरिक्षं द्वितीया प्राणगिति प्राणः वै अन्तरिक्षं तस्मादेन अन्तरिक्षं पश्यन्ति न प्राणमिति प्राणम् असौ तृतीया चक्षुः वै असौ तस्मात् पश्यन्ति अमो पश्यन्ति चक्षुः यजुषा इमां च अमों च उपेति दधाति मनसा मध्यमाम् येषां लोकानां कृते अधो इति प्राणानामिति प्राणानाः विद्याः यज्ञः भृगुभिरिति भृगुभिः आसीदाः वसुभिरिति वसुभिः तस्यातेः तस्याभितस्या द्रविणाय इति आह स्तुतशस्त्रे इति स्तुता शस्त्रे एव एतेन दुहे पिता मातरिस्वा अच्छिद्रा पदाधाः अच्छिद्राः पदा अन्विति चक्षुः सोमः विश्वविदितिर्विश्वापिते एतानि सते बृहस्पतिः उत्सामदानीत्युक्तामदानि संसिरते इति आहाय एतते वै अग्नेः उत्थं तेन एव एनम् अन्विति सकुंसति साधयेते गर्भाः प्रपादुकाः इति प्रापादुकाः सुहोदो इति यथा सवात् प्रत्यवरोहतीति प्रति अवरोहति राजगे एवाटते आसन्ति साधयति गर्भाणां धृति अप्रपादाय प्रपादाय अधोगिति सवां एवायेन करोति गर्भः वै एषः यते मुख्यः योनिः शिक्यं यते मुखां निरूहेदिति निः ऊहेते योनेः गर्भं निरति हन्यादेः
षडोद्यामपि षड् नित्यम् भवति षोडा विहित इति षोडा विहितः वै पुरुषः आत्मा चाशिरः चत्वारि अङ्गानि आत्मन्येवायेनम् विभक्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् अग्निः तस्या उका च उलोकलम् चास्तनौ तौ अस्या प्रजापति प्राजाः उपेति जीवन्ति यत् मुखाम् च उलोकलम् च उपदधाति ताभ्याम् एव यजमानः अमुष्मिन् लोके अग्निम् दुहे संवत्सर इति संवत्सरः वै एषः यत् अग्निः तस्य त्रेधा विहिता इति त्रेधा विहिताः इष्टकाः प्राजापत्या इति प्राजापत्याः वैष्णवीः वैश्वकर्मणीरिति वैश्वाकर्मणीः अहोरात्राणि रात्राणि एव अस्या प्राजापत्या इति प्राजापत्याः यदौख्यम् विभक्ति प्राजापत्या इति प्राजापत्याः एव तदेवुपेति धत्तेः यत् समिध इति इदः आर्धातीत्यादधाति वैष्णवाः वै वनस्पतयः वैष्णवीः एव तदेवुपेति धत्ते यदिष्टकाभिः अग्निम् चिनोति इयम् वै विश्वकर्मेति विश्वकर्माः वैश्वकर्मणीरिति वैश्वकर्मणीः एव तदेवुपेति धत्तेः तस्मात् आहोर्वृति त्रेवृते अग्निः इति तं वै एतं यजमानः एव जिन्वीतागते अस्या अन्याः चिनुजाते तं दक्षिणाभिराधयेते अद्यम् अस्या वृन्दितायाः अस्याग्निम् चिनुजाते तं दक्षिणाभिराधयेते अग्निम् एव तत् स्पृणोति प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् अजिनुताभिः संवत्सरमिति संवत्सरम् वसन्तेन एव अस्या पूर्वार्धमिति पूर्वार्धम् अजिनुता ग्रीष्मेण दक्षिणम् पक्षम् वर्षाभिः पुच्छम् शरदा उत्तरमित्युत्तरम् पक्षम् एवं तेन मध्यम् ब्रह्मणा वै अस्या तत् पूर्वार्धमिति पूर्वार्धम् अजिनुता क्षत्रेण दक्षिणम् पक्षम् वसुभिरिति वसुभिः पुच्छम् विशा उत्तरमित्युत्तरम् पक्षम् आशया मध्यम् यः एवं विद्वान् अग्निम् चिनुते ऋतुभिः एवायेनम् चिनुते अतो इति एतत् एव सर्वम् अवेति रुन्धेः शृण्वन्ति एनम् अग्निम् जिज्ञानम् अति अन्नम् रोचते इयम् वा प्रथमाचितिः ओषधयः वनस्पतयः पुरीषम् अन्तरिक्षम् द्वितीयावयागम् पुरीषम् असौ तृतीयाः नक्षत्राणि पुरीषम् यज्ञः चतुर्थी दक्षिणा पुरीषम् यजमानः पञ्चमी प्रजेति प्राजा पुरीषम् यत् प्रचिति कामिति जन्मीता यज्ञम् दक्षिणाम् आत्मानम् प्राजाम् अन्तः यात् तस्मात् पञ्चतिदेक इति पञ्चातिदेकः चेतव्यः एतत् एव सर्वम् शृणोति यत् अस्राचितयः प्रवर्तते प्रवर्तते अग्निः यदे द्वे गति द्विपादिति द्विपादे यजमानः प्रतिष्ठित्यादिति प्रतिष्ठिते पञ्चाचितयः भवन्ति पान्तः पुरुषः आत्मानम् एव शृणोति पञ्चाचितयः भवन्ति पञ्चभिर्ति पञ्चाभिः पुरुषैः अभिधि ऊहति दशासमिति पच्यन्ते दशा अक्षरकिति दशा अक्षरः वै पुरुषः यावान् एव पुरुषः तं शृणोति अधो यदि दशाक्षरे दशाक्षराः विराजति वीराटे अन्नम् विराजति वीराटे विराजिति विराजि एव अन्नाद्यगित्यन्नाद्येः प्रतीति तिष्ठति संवत्सर इति संवत्सरा वै षष्टिचितिः ऋतवः पुरीषम् षड्चितयः भवन्ति षड् पुरीषाणि द्वादशासमिति पच्यन्ते द्वादशामासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतीति तिष्ठति रोहितः धूम्ररोहित इति धूम्रारोहितः कर्कन्धरोहित इति कर्कन्धरोहितः ते प्राजापत्या इति प्राजापत्याः बभ्रुः अरुणबभ्रुरित्यरुणा बभ्रुः शुकबभ्रुरिति शुकाबभ्रुः ते रौद्राः श्वेतः श्वेताक्ष इति श्वेताक्षः श्वेतक्लीब इति श्वेत
श्रीवहाते पितृदेवत्या इति देवत्याः तिस्रः कृष्णाः वसाः वारुण्यः तिस्रः श्वेताः वसाः सौद्यः मैत्रा बार्हस्पत्या इति मैत्रा बार्हस्पत्याः धूम्रललामा इति धूम्रललामाः तूपराः वृष्टिः तिरश्चीन वृष्टिरिति तिरश्चीन वृष्टिः ऊर्ध्ववृष्टिरित्योर्ध्वा वृष्टिः ते मारुताः फल्गुः लोहितोन्नीति लोहिता पूर्णे परक्षीताः सारस्वत्याः पृषति स्थूलपृषतीति स्थूलापृषतिः क्षुद्रपृषतीति क्षुद्रपृषतीताः वैश्वदेव्य इति वैश्वदेव्यः तिस्रः श्यामाः वसाः पौष्ण्यः तिस्रः रोहिणी वसाः मैत्रियः ऐन्द्राबार्हस्पत्या इत्यैन्द्रा बार्हस्पत्याः अरुणललामा इत्यरुणललामाः तूपराः श्रुतिबाहुरिति श्रुतिबाहुः अन्यतः श्रुतिबाहुरित्यन्यतः श्रुतिबाहुः समन्तरितिबाहुरिति समन्तारिति बाहुः ते ऐन्द्रावायवाः श्रुतिरन्ध्र इति श्रुतिरन्ध्रः अन्यतः श्रुतिरन्ध्र इत्यन्यतः श्रुतिरन्ध्रः समन्तश्रुतिरन्ध्र इति समन्ता श्रुतिरन्ध्रः मैत्रा वरुणा इति मैत्रा वरुणाः शुद्धबाल इति शुद्धबालः सर्वशुद्धबाल इति सर्वशुद्धबालः मणिबाल इति मणिबालः ते आश्रिताः तिस्रः शिल्पाः वसाः वैश्वदेव्य इति वैश्वदेव्यः तिस्रः श्रेणीः परमेष्ठिने सोमापौष्णा इति सोमापौष्णाः श्यामललामा इति श्यामललामाः तूपराः उन्नत इत्युदोन्नतः ऋषभः वामनः ऐन्द्रावरुणा इत्यैन्द्रावरुणाः शितिककुदिति शितिककुदे शितिपृष्ठ इति शितिपृष्ठः शितिभसदिति शितिभसदे ते ऐन्द्रावान् प्रत्या इत्यैन्द्रा बार्हस्पत्याः शितिपादिति शितिपादे शित्योष्ठ इति शिति ओष्ठः शित्योष्ठ इति शिति शित्योष्ठ इति शिति ओष्ठः शितिभ्रुरिति शितिभ्रुते ऐन्द्रा वैष्णवा इत्यैन्द्रा वैष्णवाः तिस्रः सिद्धाः वसाः वैश्वकर्मण्यकिति वैश्वकर्मण्यः तिस्रः दात्रे सोदरा इति पुरुषोदराः ऐन्द्रावौष्णा इत्यैन्द्रावौष्णाः श्वेतललामा इति श्वेतललामाः तूपराः कर्णाः त्रयः यामाः லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதயாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். பக்தர்களே, குரு என்கிற பதத்தில் கு என்கிற அக்ஷரம் அஜ்ஞானமாகிய இருளை சொல்கிறது. ரு என்கிற அக்ஷரம் அதை தடுப்பதை சொல்கிறது. குரு அல்லது ஆச்சாரியன் என்கிற பதத்துக்கு அர்த்தம் அஜ்ஞானத்தை போக்குபவர். முதல் ஆச்சாரியரான ஸ்ரீமன் நாராயணன் பிராட்டிக்கு உபதேசம் செய்ய அதன் பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் முதலான ஆச்சாரியர்கள் அதை தொடர்ந்தனர். இந்த வகையில் பெரிய பிராட்டியான தாயார் நம்மை போன்ற பக்தர்களை வழிநடத்தி செல்ல இந்த திருச்சானூரில் கொலுவிருக்கிறாள் என்பது புரிகிறதல்லவா? ஒரு ஆச்சாரியனின் கடமை தன் சிஷ்ய ஜனங்களுக்கு நல்லவைகளை போதித்து அவர்களை எம்பெருமானிடம் கொண்டு செல்வது. அதைத்தான் தாயார் நமக்கு செய்கிறாள். அபயப்பிரதாம், அபயம், உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று தனது அபயஹஸ்தத்தை காட்டி நம்மை எல்லாம் அவளிடம் அழைக்கிறாள். அந்த தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷீரம் எனப்படும் பாலால் அபிஷேகம் பண்ணி சோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மங்களவாரம், மங்களகரமான தாயார் மஞ்சளாலான மாலையை அணிந்திருக்கிறாள். திருமகள் எதிலெல்லாம் வசிக்கிறாளோ அதெல்லாம் நமது வணக்கத்துக்குரியவை. அதனால்தான் அவள் ஆவிர்வவித்த திருப்பார்கடலை நாம் திவ்ய தேசமாக வணங்குகிறோம். எம்பெருமான் சிவன் நாராயணனும் அந்த ஸ்தலத்தின் மகிமையால் ஆக்கர்ஷிக்கப்பட்டு அங்கே சயன திருக்கோலத்தில் சேவை தருகிறார். தேவர்களும் ரிஷிகளும் பகவானிடம் விண்ணப்பிக்க, அதாவது தங்கள் குறைகள் தீர முறையீடு செய்ய வரும் இடம் இந்த திருப்பார்கடல்தான்.
ஏன் தெரியுமோ? அங்கேதான் தேவி தனது திருக்கரங்களால் எம்பெருமானின் திருப்பாதத்தை மெல்ல பிடித்து விட்டு கொண்டிருக்கிறாளாம். ஆகவே அந்த தேவியின் திருக்கண்கள் எந்தெந்த திசையில் திரும்புகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வங்கள் பெருகுவதோடு அவர்களின் எந்த குறைகளுக்காக வந்திருக்கிறார்களோ அந்த குறை கூட தீருபாம். அஷ்ட ஐஸ்வர்ய அவாப்னோதி குபேர இவ பூதலே. அவளுடைய ஒரு கடைக்கண் பார்வை போதும், நமக்கு எல்லையற்ற செல்வம் சேரும். அது மட்டுமல்ல, பாவமோ புண்ணியமோ எதை செய்தவர்களானாலும் எப்படி ஒரு ஆச்சாரியரிடம் சென்று பிரபத்தி பண்ணினால் அந்த ஆச்சாரியன் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு தஞ்சமடைந்தவர்களை கரையேற்றுகிறாரோ அதைப்போல தாயாரும் தன்னிடம் சரணம் என்று வந்த பக்தர்களுக்காக அவர்களுக்காக எம்பெருமானிடம் சிபார்சு செய்து அந்த பகவானின் சீற்றத்தை தணிக்கிறாளாம். சங்கல்பமானம் பிரகல்பமானமுபகல்பம் கிளுப்தம் ஸ்ரேயோ வசிய ஆயத் சம்போதம் பூதம் चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भाने ज्योतिष्माकृस्तेजस्वानादपग्रस्तवन्नभिरवन्ने रोचनो रोचमानस्तोभनस्तोभमान कल्याणः।
स्वराग्निगिति स्वराग्ने अनोवाह विद्यनः बाहो अनड्वाहो इन्द्राग्निभ्यामिति इन्द्राग्निभ्याम् ओजोदाभ्यामित्योजहादाभ्याम् मुष्टारो इन्द्राग्निभ्यामिति इन्द्राग्निभ्याम् बलदाभ्यामिति बलादाभ्याम् श्रीरवाहाविति श्रीरावाहौ अवीगिति द्वेगिति धेनो इति भौमीति दिग्भगिति दिगेभ्यः वडभे इति द्वेगिति धेनो इति भौमीगिति वैराजीगिति पुरुषीगिति द्वेगिति धेनो इति भौमीगिति वायवे आरोहणवाहावित्यारोहणवाहौ अनड्वाहौ वारुणीगिति कृष्णेगिति वसेगिति अराज्यौ दिव्यौ वृषभौ परिमलामिति परिमरौ एकादशा प्रातः कवचाः प्रथमः येते लभ्यन्ते चकलाः कल्माषः गिरिमिः विदीर्यः ते त्वाष्ट्राः सौरीः नवः श्वेताः वसाः अनुमध्या इत्यनुमध्याः भवन्ति आप्नेयः ऐन्द्राग्न इत्यैन्द्र अग्नः आश्विनः ते विशालयूप इति विशालयूपे येति लभ्यन्ते विसङ्गाः त्रयः वासन्ताः सारङ्गाः त्रयः ग्रीष्माः वृषन्तः त्रयः वार्षिकाः वृष्णयः त्रयः शारदाः पृष्टिसक्ता इति प्रश्ने सक्ताः त्रयः हैमन्तिकाः अवलिप्ता इत्यवलिप्ताः त्रयः शैशिराः संवत्सरा येति संवत्सराज वक्षस इति वक्षसः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ